students, this is sum number 17 from our sheets. Messrs. Alpha Manufacturing Company Limited. Now, because tomorrow you are going to write a test on reconciliation, I am taking similar type of problem which I have taught yesterday. From Monday onwards, I will be taking difficult type of problems where profit and loss, cost sheet and reconciliation. All three you are supposed to prepare. Okay, and the next week I'll wrap up with this chapter. I'll be starting with financial accounting. Okay, so the following is the summary of trading and profit and loss account of Messrs. Alpha Manufacturing Company for the year ended 31st of March 2001. Particulars rupees. So here profit and loss, trading profit and loss is given to us, and niche information will be of cost accounting. The company manufactures a standard unit. In the cost account, the factory expenses are given, admin expenses are given, selling expenses are given. You are required to prepare a costing profit and loss. Change kar dena. You are required to prepare a cost sheet and reconcile the profit disclosed with shown in the financial accounts. Okay. So पहले बनाना है cost sheet. Cost sheet के लिए सबसे पहला direct time cost. So I'll write direct material. I will write direct wages. Okay, दिया है क्या नीचे देखो, ऊपर पहले चेक करो डायरेक्ट मटेरियल दिया है, नीचे दिखाया क्या नहीं दिखाया, तो पूरा कॉपी करना है सेम ही. 27 लाख 40,000. डायरेक्ट वेजेस भी सेम कॉपी करना है 15 लाख 10,000. अच्छा, उसके पहले करना भूल गए, क्या भूल गए बोलो. चलो, जब भी कॉस्ट शीट बनाते हैं तो क्या करना है, सबसे पहला यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड. यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड कैसे निकालते हैं, 42,000 42,50,000. यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड कैसे निकालते हैं, देखो ना, सेल्स का यूनिट्स दिया है 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,000, बराबर ना. तो ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस लेस क्लोजिंग इज सोल्ड. ओपनिंग नहीं मालूम है, प्रोड्यूस भी नहीं मालूम है, क्लोजिंग इज 4,000, sold is 1,20,000. So produce will be 1,20,000 plus 4, that is 1,24,000. Okay ना, easy है ना, बहुत सम की है इसके लिए, जरा फटाफट खत्म कर देते हैं. 1,24,000 and unit sold is 1,20,000. Okay, so here you will write 1,24,000. So add factory overheads. Factory overheads is given in the see below the profit and loss. Factory expenses are allocated 20% of prime cost. So it is 20% of prime cost. 20% of prime cost will be 42,50,000 into 20%. 42,50,000 into 20%. That will be 8,50,000. Okay. Add opening stock of work in progress less closing stock of work in progress. See, closing stock of work in progress दिया रहता है नॉर्मली ऐसे सम में, दिया है देखो ना, बाय वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस जो भी है, टोटल कितना दिया हुआ है 1,20,000. So 1,20,000 is the total closing stock of work in progress. So you will get what, factory cost. Factory cost will be 42,50, 51 lakh. 51 lakh minus 1,20,000, that will be 49,80,000. 49,80,000 divided by 1,24,000. Okay ना. Add office and admin overheads. नीचे बोला रहेगा देखो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है देखो. एडमिन एक्सपेंसेस आर 3 per unit of unit produced. So 1,24,000 into 3, that is 1,24,000 into 3 is 3,72,000. So you will get cost of production. Cost of production, that is 1,24,000. 3,72,000 plus 49,89,000. That is 53,52,000. Divided by 1,24,000 will be 43.16. Okay. Less closing stock of
फिनिश गुड्स, क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4000 दिया है, सेम रेट आएगा 43.16। ये जो रेट है ना पूरा सेम ही रखा है, देखो मैंने इनटू 43.16 शीट, पूरा रेट सेम लिखते हैं 53,52,000 डिवाइडेड बाय 1,24,000 into 4,000, that is equal to 172645. So you will get cost of goods sold 1,20,000 and here you will get 53,52,000. Here you will get 51,79,355. Okay, and selling overheads. क्या बोला है सेलिंग ओवरहेड्स का, देखो जरा। सेलिंग ओवरहेड्स का बोला है 4 per unit. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 4 per unit on unit produced बोला है। एक्चुअली क्वेश्चन में गलत है ये, एक्चुअली यूनिट सोल्ड होना चाहिए, बट यूनिट प्रोड्यूस जब बोला है तो वी विल टेक 1,24,000 into 4, ओके ना। तो 1,24,000 into 4 that is 4,96,000 डिवाइड बाय 1,20,000 करेंगे तो अपने को रेट पर मिलेगा, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। Cost of sales will be 79,355. Will be 56,75,355. बराबर। Add profit sales. Sales नीचे नहीं दिया हुआ है, ऊपर का ही लिख देना है 60 lakhs. 60 lakhs minus 56,75,355 will be 3,24,645. ये सब तुम लोग कर सकते हो। The next is our reconciliation statement. The question there is a mistake, right? In profit and loss account to net profit जहां पे दिया हुआ है ना, राइट, 3,25,600, वहां पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे 3,25,600 आएगा। ओके, सो दोनों में प्रॉफिट है, यहां भी प्रॉफिट है, यहां भी प्रॉफिट है। तो स्टार्टिंग विद कॉस्टिंग प्रॉफिट इज 3,24,645, 3,24,645। कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी, यू विल गेट फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 3,25,600। होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट। चलो पहला टेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द बेस। पहला मटेरियल कंज्यूम 27,40,000, मटेरियल कंज्यूम 27,40,000, शेम टू शेम, टेंशन खत्म। वेजेस 15,10,000, वेजेस 15,10,000, सेम टू शेम, क्वेश्चन खत्म। फैक्ट्री एक्सपेंस 8,30,000, फैक्ट्री एक्सपेंस 8,50,000, तो यहाँ पे 8,50,000 है कॉस्टिंग में, 8,50,000 से प्रॉफिट कम होगा, और यहाँ पे 8,30,000 से प्रॉफिट कम होगा। कहां से कहां जाना है? कॉस्ट से फाइनेंस में जाना है। ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे? फैक्ट्री expenses overcharged in cost, how much? 20,000। कौन तकलीफ? नहीं तकलीफ। आगे चलते हैं। फैक्ट्री के बाद एडमिन एक्सपेंस 3,82,400, योर एडमिन एक्सपेंसेस 3,72,000। तो चलो कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट, यहाँ पे 3,72,000, यहाँ पे 3,82,400। ओके ना, ज्यादा है ना? कहां से कहां जाना है? यहां से यहां जाना है, लेस करेंगे। यहाँ पे कम है, इसमें ज्यादा है, लेस करेंगे। क्या लिखेंगे? एडमिन ओवरहेड्स अंडर चार्ज इन कॉस्ट
कितना 3,82,400 माइनस 3,72,000 10,400 ओके 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 क्लियर है आगे चलते हैं नेक्स्ट लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेस 4,50,000 यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स 4,96,000 कॉस्टिंग फाइनेंस 4,96,000 और यहाँ पे 4,50,000 ओके ना कहां से कहा जाना है कॉस्टिंग से फाइनेंस पे जाना है ऐड करेंगे कितना 46,000 क्या लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड्स ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट कितना 496 माइनस 450 दैट इज 46,000 ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ दोनों खर्चे हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट फाइनेंस प्रॉफिट दोनों खर्चे हैं फाइनेंस का प्रॉफिट दोनों से नीचे आएगा कॉस्ट में नहीं है वो तो क्या करेंगे नीचे जाना है लेस करेंगे क्या करेंगे लेस एक्सपेंसेस टेकन या कंसिडर्ड इन फाइनेंस ओनली विच एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ and goodwill return off how much 40 and 20 40 20 next sales 60 lakhs sales 60 lakhs sham to sham finished goods closing stock 1,60,000 closing stock of finished goods अलग है चलो costing profit finance profit यहाँ पे कितना है 1,72,000 ज्यादा है 172,645 बराबर ना और यहाँ पे कितना है 1,60,000 कम है यहां से यहां जाना है क्या करेंगे लेस क्या करेंगे लेस क्या लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट हाउ मच 12,645 ओके आगे चलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 शेम टू शेम डिविडेंड जो 18,000 इधर नहीं है डिविडेंड रिसीव्ड कॉस्टिंग प्रॉफिट फाइनेंस प्रॉफिट डिविडेंड रिसीव्ड से फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ता है यहां से यहां जाना है ऐड करेंगे क्या लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड टेकन इन फाइनेंस ओनली 18,000 अरे बराबर विद दिस वी कंप्लीट so add 20 plus 46 66 66 plus 18 that is 84,000 plus 3,24,645 that is 4,08,645 okay less करना है 10,400 plus 40 plus 20 plus 12,645 that is 83,045 ये लेस करना है माइनस 408,645 that is 3,25,600 परफेक्टो